پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیحا کے مبارک اور خوبصورت ترین نام میں آج شب پھر یہ خاکسار خادم آپ تمام مومنین کلیسا کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور شکر کرتا ہوں اپنے خداوند کا جس کے نام سے آج ہم سب آن لائن جمع ہو پائے، اسکائپ آئی ڈی پر، فیس بک کے کئی پیجز پر آپ جو موجود ہیں، یوٹیوب چینل پر اور واٹس ایپ گروپ میں آپ سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں خداوند آج مجھے اور آپ میں سے ایک ایک کو اپنے زندہ کلام کے وسیلہ سے خوب برکت عنایت فرمائے اور ہم خبردار اور آگاہ ہو سکیں کہ مستقبل قریب میں کیا ہونے کو ہے۔ کتاب مقدس سے ہم بائبل مقدس کی سب سے آخری نبوتی اور مکاشفاتی بھیدوں اور رازوں سے پر کتاب یعنی خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو مقدس یوحنا کے وسیلہ سے لکھا گیا ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بالترتیب ہم 18 باب تک پہنچے اور اب تک ہم اس 18 باب کی پہلی 10 آیات پر غور کر چکے ہیں۔ دھیرے دھیرے یاد کیجئے کہ ہم 17 اور 18 ابواب میں بابل کی بابت یعنی اس جس کو کسبی کہا گیا ہے، فاحشہ کہا گیا ہے، اس سے متعلق سیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چوتھے باب سے لے کر مکاشفہ چوتھے باب سے لے کر 18 باب تک کا جو دورانیہ ہے اس کو ہم نے مصیبت کے زمانے کے طور پر دیکھا اور اسی زمانے سے متعلق ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ بابل کی ری اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہم نے بات کی ہے جو عراق کے شمالی حصے میں پھر سے ہوگی بمطابق علماء بائبل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی قومیں بادشاہ کس طور پر اس بابل کے ساتھ اپنا ناطا قائم کرتے جوڑتے اور اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے بات کی ہے کہ یہ بابل اکنامیکلی کمرشل پہلو کے اعتبار سے، تجارتی پہلو کے اعتبار سے اتنا اسٹیبلش اور اتنا قائم ہوگا کہ اب غضب الہی اس پر ٹوٹے گا۔ پہلے تو اس کا روحانی طور پر جو حال تھا اس کی تباہی ہوئی، اور اب اس کی جو کمرشل اکنامک کی جو حالت ہے اب اس کی تباہی اور اس کا زوال ہوگا۔ اور ہم اس 18 باب کے بقیہ حصہ میں بھی ہم اسی بات کو دیکھیں گے۔ پھر سے کہوں گا، اس بابل کے لیے جو لفظ انگریزی زبان میں اس سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خاتون یعنی فیمیل ہو۔ اگرچہ بابل کا نام آیا ہے لیکن جب اس کا یا اس کی کہا گیا تو وہاں اس پر
उसका नाम खातून के तौर पर पेश किया गया। क्यों? क्योंकि शुरू से ही हम इसको देखते आ रहे हैं कि बाबल ने गुनाह के एतबार से यूं लगता है जैसे आसमानों को छुआ है। बुत परस्ती और जिनाकारी के एतबार से मारूफ, खुदा के हुजूर बगावत करने के एतबार से मारूफ, इसलिए कलाम खुदा में इसको फाहिशा या कसबी के तौर पर मुखातब किया गया है। अब हम इस बाब में इस बाबल की अदालत और उसकी सजा जो खुदा की तरफ से है, हम उसको देख रहे हैं और अभी ये कंटिन्यू है। और वो तमाम लोग जो इस बाबल के साथ राबते में थे, खा वो बादशाह थे, खा वो सौदागर थे, भले कौन से, हम गौर करेंगे, वो तमाम अब पीटेंगे और रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने वो जो बाबल ऐश परस्ती का गढ़, बदी और हर किस्म की बुराई का मरकज था, अब वो खुदा की तरफ से नजरे आतिश हो रहा है। पल भर में वो मुकम्मल तौर पर नाबूद हो जाएगा, नजरे आतिश होकर। और ये बाबल का नजरे आतिश होना कोई मायूब नहीं है, क्योंकि खुदा अगर सदूम और अमूरा पर आसमान से आग और गंधक की बारिश बरसाकर तबाह और नेस्तो नाबूद कर सकता है, तो खुदा के लिए इस बाबल को नाबूद करना कोई मसला नहीं है। इवन वो वहां से ऐसा लावा निकाल सकता है, भूचाल, आतिशफशां के सबब से उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। जो भी होगा ये खुदा के प्लान और मंसूबा में है और वो वैसा करेगा। लेकिन मेन बात यह है कि हम उस कमर्शियल बाबल की तबाही और जवाल और उसका आग से भस्म होना, उसके धुएं का आसमानों को छूना, इससे मुताल्लिक देख रहे हैं। देखिए, जो भी बुराई का मरकज बना और खुदा के बरखिलाफ हो चला, खुदा ने जरूर उसका इंतकाम लिया। लेकिन इंतकाम लेने से पहले खुदा हमेशा वक्त और मोहलत फराहम करता है कि वो तौबा करे और उसकी तरफ रुजू लाए। खुदा की कभी भी यह मर्जी नहीं है कि कोई भी बशर हलाक हो, लेकिन अगर कोई इतना हट दरम हो जाए कि खुदा से मुकम्मल तौर पर बागी, तो खुदा भी उसके दिल को सख्त कर देता है। तो खुदा भी उसको अपनी नफसानी ख्वाहिशों के स्पर्द कर देता है कि जो चाहे करता फिर, तुम्हारी आजाद मर्जी है। लेकिन याद रख कि आंखों की मंजूरी में चल तो सही, अपने जी को बहला तो सही, अपने दिल की राहों पर चल तो सही, चल जितना चल सकता है। लेकिन याद रख कि एक दिन तुझे अदालत के कुटहरे में खड़ा होना है। और यह पैगाम मेरे लिए और हम सब के लिए खुदा की तरफ से एक ललकार और पुकार है। 11 आयत से 17 आयत तक आज हम गौर करेंगे, क्योंकि इन आयात में कोई बहुत बड़ी गहरी बातें तो नहीं है, क्योंकि एक लिस्ट है, हम उससे होता हुआ आगे गुजरेंगे
और बाबल से मुताल्लिक जो मेन बातें हैं, हम उन पर इस कलील से वक्त में गौर खोज करेंगे। किताब मुकद्दस में लिखा है, लेकिन इस 11 आयत पर जाने से पहले जरा थोड़ा सा देख लीजिए 9 आयत से। और उसके साथ हरामकारी, किसके साथ? बाबल के साथ, जो कस्बी है। और अय्याशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसके अजाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ए बड़े शहर, ए बाबल, ए मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। और फिर 17 आयत, घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई। और फिर यूं हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, बल्कि एक और मकाम पर भी यही टर्म इस्तेमाल हुई है, घड़ी ही भर में। देखिए 19 आयत का आखिरी हिस्सा, वो बड़ा शहर जिसके दौलत से समुंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। इन तीनों जुमलों का आपके सामने पेश करना लाजिम था, ताकि हम 11 से 17 तक की आयात को और बेहतर तरीका से समझ सके। लेकिन बाबल के जवाल और बसम हो जाने, उसकी अदालत होने और उसके नाबूद होने का जो असर है, यानी उसके सबब से कौन मुतासिर हुए, हमने देखा है बादशाह मुतासिर हुए और दुनिया के सौदागर, मर्चेंट, ताजर और समुद्री जहाज के मालिकान और इवन जहाज के मल्लाह और मुसाफिर भी। क्यों? क्योंकि दुनिया के बादशाह उस बाबल के साथ जाकर कंप्रोमाइज, समझौता, बदी, गुनाह, जिनाकारी और अय्याशी करते थे। और ये जो दुनिया के सौदागर यानी ताजर हैं, वो अपना मालो मता, माल की तरसील इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते और यो बाबल से ज़र मुबादला हासिल करते और खूब अमीर कबीर होते चले जाते। और साथ ही साथ बहुत ही अहम तरीन बात जो हमें नजर आती है वो ये है कि समुद्री जहाज जो शायद अभी बाबल के किनारे पर नहीं पहुंचेंगे, दूर ही समुद्र में वो खड़े होंगे और जहाजों के मल्लाह और मुसाफिर जो मजीद अय्याशी के लिए बाबल जा रहे थे, वो देखेंगे अपनी आंखों के सामने कि बाबल आग की नजर हो चुका है, भस्म हो रहा है पल भर में, घड़ी भर में। अंग्रेजी में जो घड़ी भर है वहां पर विद इन ए हावर यानी घंटे भर में वो मुकम्मल तौर पर नाबूद हो जाएगा। अब वो एंटर बाबल में होने से तो रहे, लेकिन दूर खड़े होकर उस बाबल का तमाशा देखेंगे और ताजर रोएंगे और मातम करेंगे, अफसोस करेंगे। जहाज रान अब जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी, ताजरों की इन्वेस्टमेंट थी, वो तमाम जाती रहेगी। मुसाफिर मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अब बाबल तबाह होगा। और वो क्या कहेंगे? अफसोस, ए बड़े शहरे बाबल,
तू कितना हसीन, खूबसूरत, दौलतमंद था। हम किस तरह तेरे साथ कंप्रोमाइज, समझौता किए हुए थे, लेकिन पल भर में तू भस्म हो गया, नाबूद हो गया। बाबल, ये क्या हुआ तेरे साथ? तू तो एक मजबूत शहर था। और उनके रोने और मातम करने के पीछे रीजन जो है वो तौबा करना नहीं है, पछतावा नहीं है। उनके रोने और उनके मातम करने और आहो नाला करने के पीछे जो रीजन है वो ये, हाय मेरी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई, हाय जितना भी मैंने मालो मता वहां से लेना देना था वो तमाम खत्म हो गया, हाय अब हम अय्याशी कहां पर जाकर करेंगे, सब कुछ तो जाता रहा है, अब क्या होगा। दुनियावी और जिस्मानी सोचों के सबब से वो अपने आप पर मातम करेंगे, इवन बाबल पर भी, कि वो क्यों तबाह और बर्बाद हो गया है। और खुदा की बिल्कुल भी ये ख्वाहिश ना थी और ना है कि कोई भी बशर, कोई भी शहर हलाक हो, लेकिन ये इस वजह से मातम नहीं करेंगे कि हम तौबा करके खुदा की तरफ रुजू लाए, बल्कि इस दुनिया की दौलत के लिए दुनियादारी का गम जो मौत पैदा करता है उनको खा जाएगा। अब आयत 11, और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे। कौन? दुनिया के सौदागर, ताजर, तिजारत करने वाले, मर्चेंट्स क्या करेंगे? रोएंगे और मातम करेंगे। रोना और मातम करना दो काम, ओहो, ये दोनों जब हो रहे हों तो आप फीलिंग्स यानी एहसासात में इस बात को महसूस कर सकते हैं कि वो किस कदर अपने आप में इंतहाई टूटा हुआ फील करेंगे, बेयारो मददगार, क्योंकि अब ना उनकी दौलत किसी काम आएगी और ना ही उनका असरो रसूख, मगर यस्सु नाल प्रीत जिना दी, ओ पापी तर जावनगे। लेकिन यस्सु के साथ अगर प्रीत की बात नहीं की, उसके प्रेम के बहते हुए दरिया में अपने आप को गोताजन नहीं किया, तो हलाकत करीब है। इस आयत में लिखा है, क्योंकि अब कोई उनका माल खरीदने वाला नहीं है, इसलिए वो मातम करेंगे और रोएंगे। दुनियावी माल के सबब से कि अब क्या होगा। आयत 12, और वो माल ये है। अब जब मैं माल की बात करता हूं तो आप अंदाजा कीजिए कि ये बहुत ही लग्जरियस यानी बहुत ही आला टाइप की कीमती तरीन चीजों का नाम इन आयात में मदर्रज है कि इन तमाम चीजों के एतबार से वो रोएंगे और मातम करेंगे कि अब उनका कोई चारा नहीं है, उनका खरीदने वाला कोई नहीं। और वो माल ये है, सोना, चांदी, जवाहिर। मुझे यूं लगता है जैसे ये कि आप किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं। स्वीडन में विलेज है, बल्कि बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस। एक ही बड़ी मार्केट जहां
हर एक चीज के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अगर अमेरिका में जाए वॉलमार्ट वगैरह और जो दीगर ममालिक हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के शॉपिंग सेंटर। मिसाल दे रहा हूं, खुदा न करे हम अगर तैयार हो रहे हों कि जी मसीह की वलादत की ईद का दिन करीब आ रहा है या क़यामतुल मसीह का दिन करीब आ रहा है, हम जाएं फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए, और यह हाल जो यहां पर हमें नजर आ रहा है सेम वहां ही हो रहा हो, खुदा न खास्ता, तो हम क्या करेंगे? और इवन ये तो मामूली बात है, इन लोगों ने तो वहां पर फुल इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो इसकी बाबत परेशान और नाला है। अभी यूं लगता है वो उस बड़े शॉपिंग सेंटर में जो ज्वेलरी का डिपार्टमेंट है, लगता है अब उसकी बात हो रही है। सोना, चांदी, जवाहिर, मोती, और फिर आगे लगता है मलबूसात के आगे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, और महीन कतानी और अर्गवानी और रेशमी और किरमजी कपड़े, पहले ज्वेलरी और फिर कपड़े। और वो लोग जो इन चीजों के खरीदो फरोख्त में महब और मसरूर थे, अब वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही लोग तो इन्हीं चीजों के सौदे वहां पर किया करते थे, पैसा कमाते और ऐश परस्ती किया करते थे। ये सब कुछ अब जाता रहेगा। उसके बाद कीमती तरीन तहाइफ जो दूसरों के लिए दिए जाते हैं। हमने सोना चांदी, ये मामूली चीजें नहीं है, बहुत महंगी है। और ये जिन कपड़ों का नाम यहां पर लिया गया है, ये भी मामूली नहीं है, हाई फाई। इवन शाहाना मलबूसात, और अब कीमती तरीन तहाइफ की बात हो रही है, जिनका जिक्र है हर तरह की खुशबूदार लकड़ियां, आबनूस वगैरह, लेकिन हर तरह की, सिर्फ एक नहीं। और हाथी दांत की तरह तरह की चीजें, तरह तरह की चीजें कितनी हुई होंगी या कितनी होंगी मुझे मालूम नहीं, और यहां पर यह लिखा भी नहीं है। और निहायत बेश कीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगमरमर की तरह तरह की चीजें। ओहो, ये तमाम चीजें वो हैं जिनका वो बिजनेस किया करते थे, और अब ये तमाम चीजें जितनी की जितनी हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह और खत्म हो जाएगी, जिस सबब से उन्हें अफसोस होगा। और फिर आगे लगता है जैसे कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट है, क्योंकि लिखा है और दारचीनी और मसाले और ऊद और इत्र और लुबान, और फिर आगे अल्कोहल वाला भी डिपार्टमेंट, और मैं, और फिर और तेल और मैदा और घी, और उसके बाद हैवानात का लगता है मंडी, यह भी सब कुछ वहां है। मवेशी और भेड़ें और घोड़े और गाड़ियां, यहां गाड़ियों से मुराद बाइबल के जमाने में रथ थे, लेकिन आज के दौर में आप जानते हैं, और अगर इस जमाने के बाद की हाल हो तो मजीद जदीद तरीन गाड़ियां हो सकती हैं। और फिर गुलाम और आदमियों की जानें,
जब हम गुलाम और आदमियों की जाने से मुराद यह है कि गुलामों की भी और आदमियों की भी, खवातीनों हजरात दोनों की, जिसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, इंसानों की तरसील और खरीदो फरोख्त, जिनको वहां पर बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिन पर जुल्म होता था, कसबियां और गुलाम, उन तमाम के साथ इसी तरह से होगा और इनके ये बिजनेस अब मुकम्मल तौर पर फ्लॉप और स्टॉप हो जाएंगे। अजीजों, अगर आज की इस दुनिया को इसी रूह में देखा जाए तो यूं लगता है कि जैसे आज किसी बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाएं। मैं स्वीडन में हूं और स्वीडन में एक स्कैंडिनेवियन मॉल है जो पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सबसे बड़ा है। एक या दो दफा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत बड़ा, कराची में द लक्की मॉल। खैर, मैं इन मॉल्स की एडवर्टाइजमेंट्स तो नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये जो जदीद मार्केट प्लेसेस हैं, उनमें जदीद चीजें हैं आज के दौर में। बाइबल के जमाने में जिन बातों का यहां पर जिक्र किया गया है, इनमें से पॉसिबल है कि ये माल मवेशी वगैरह ऐसी चीजों के लिए अलग से कोई मकाम हो, लेकिन सोना, चांदी, जेवरात, खुशबुएं और मैं और घियों और दीगर तमाम चीजें, ये टोटल तकरीबन 30 के करीब उनका यहां पर जिक्र है, जिनकी मर्चेंटाइजिंग होती थी, और ये तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा। तो इस जदीद दौर में वो जदीद बाबल आप अंदाजा करें कि कितना आरास्ता होगा, और लोग उसके साथ तजारत करेंगे। और इन लोगों को जब उनकी आंखों के सामने उनकी इन्वेस्टमेंट जमीन दोज होती हुई नजर आएगी, तो उन्होंने रोना तो है, छाती पीटना है। बड़े बड़े दौलतमंद लोग भी अब जमीन पर गिर पड़ेंगे, क्योंकि अब उनका वहां पर कोई चारा हो नहीं पाता। और फिर 14वीं आयत, अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए बाबल। वो रोते हुए, मातम करते हुए ये कहेंगे कि ए बाबल, तेरे दिल पसंद मेवे, यहां इतनी सारी बात में भी बहुत कुछ है, सिर्फ ये फ्रूट के डिपार्टमेंट की तरफ ही इशारा नहीं है। हर तरह की ऐश प्रस्ती, लग्जरियस लाइफ से मुताल्लिक यहां पर बात हो रही है, और सब लजीज और तोहफा चीजें तुझसे जाती रही। तमाम बारबेक्यू, सब कुछ जो कुछ नजर आता है वो तमाम अब जाता रहा है। तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए, और सब लजीज और तोहफा चीजें तुझसे जाती रहीं, खत्म, नाबूद। अब वो हरगिज हाथ ना आएगी, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि ये जो भस्म करने वाली आग है, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि कलाम मुकद्दस में मरकूम है इब्रानियों के खत में कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग भी है, मोहब्बत भी है। लेकिन अगर हम उसकी मोहब्बत से फैजियाब नहीं होते तो फिर रेडी हो जाएं उसके गजब के टूटने के लिए। और यह पैगाम कौमों और उम्मतों के लिए है कि हम समझें कि हमारा खुदा कुदरत वाला और जोर आवर खुदा है। आयत 15, इन चीजों के सौदागर
जो उसके सबब से मालदार बन गए थे। दौलतमंद उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे। ये रोना और मातम करना और गम करना और अफसोस करना मुतअद्दिद बार इस बाब में आया है। दूर खड़े होकर, मैंने पहले ही इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में, अल्फाज में, तारफी कलमात में मैंने ये बताया है कि समुद्री जहाज दूर समुंदर में खड़े होंगे, वो आगे जा नहीं पाएंगे। और तमाम अमला, मुसाफिर और ताजर लोग इस बाबल की बर्बादी का हाल दूर से देखेंगे, धुआं जो आसमानों को छूता है। लेकिन अब रोने और मातम करने के सिवा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो इंतहाई परेशानी के आलम में है। क्योंकि अब उनका सारा माल और जो कुछ भी उनके पास धन दौलत थी, वो सब का सब उनकी आंखों के सामने डूब रहा था। आयत 16, और कहेंगे अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो मोहीन, कतानी और अर्गवानी और किरमजी कपड़े पहने हुए, यह कस्बी की तरफ इशारा है। कपड़े पहने हुए, कोई शहर कपड़े नहीं पहनता, लेकिन यह अलामती तौर पर बाबल की जो हरामकारी है उसकी तरफ इशारा है। वो बड़ा शहर जो मोहीन, कतानी और अर्गवानी यानी शाही लिबास और करबजी कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता था। क्या होगा? यह मुसीबत के जमाने के एंड की बात है। क्या होगा? घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई, नाबूद हो गई। हमारे खुदा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उस जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है। और आयत का बकिया हिस्सा, और सब नाखुदा से मुराद मल्लाह, समुद्री जहाज चलाने वाले। बाइबल के जमाने में हवाई जहाज नहीं थे, इसलिए वहां पर समुद्री जहाजों का जिक्र है। लेकिन अगर आज के दौर में हम बात करें तो हम एयरलाइन कंपनीज प्लस शिप्स की हम बात कर सकते हैं। इन सब के बारे में कि क्या हुआ, नाखुदा और जहाज के सब मुसाफिर, हाँ वो बाई एयर थे या बाई शिप, और मल्लाह ये भी जहाज रान है, जहाजों के मालिक, कंपनीज प्लस मुसाफिर प्लस जो इन जहाजों को चलाने वाले हैं और जितने समुंदर का काम करते हैं। आबी लोग जो समुद्री तरसील का काम करते हैं, उन सब की बाबत यह लिखा हुआ है 18 आयत, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे, कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानिंद है? कौन सा शहर, इतना बड़ा शहर, शहर बाबल, जिसका मुकाबला करने वाला कोई और नहीं था। लेकिन घड़ी भर में वो नाबूद और नेस्त हो गया। ऑफ कोर्स हमारे खुदाबंद खुदा के नाम में कुदरत है और वो ये सब कुछ करना जानता है। इसलिए हमें बहुत मोहतात रहना है मेरे अजीज भाइयों और बहनों। फिर से मैं याद दिलाता चलूं, मुसीबत के जमाने से पहले कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। वही लोग
जो खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जानते हैं। जो नहीं जानते, जो इस बात को यानी सलीब के पैगाम को बेवकूफी समझते हैं, वो हलाक होने वाले हैं। वो आसमान पर नहीं जाएंगे बशर्ते के वो तौबा करें तो। एक ही तरीका है अपने गुनाहों का इकरार करना, अपने गुनाहों से तौबा करना और सलीब के पैगाम को दिल से कबूल करना और मसीहा को अपने दिल के तख्त पर राज करने देने का मौका फराहम करना और अपनी जिंदगी का कंट्रोल फुली खुदावंद के हाथों में दे देना और रूह में जीना और मरना है। वो लोग तो आसमान पर मसीह की आमदे सानी के पहले हिस्से में उठाए जाएंगे और जो बाकी रह गए वो इस 7 साला मुसीबत के जमाने से हो गुजरेंगे, जहां उनको रोना, मातम करना और इवन अपनी जानू का भी नुकसान उठाना होगा। और अगर मुसीबत के जमाने के एंड तक वो रहे और फिर भी ज़ाते इलाही की तरफ रजू ना लाए, तो आप देख लीजिए कि खुदा किस तौर पर ऐसे लोगों की अदालत करेगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों, अगर आपने किसी चर्च और किसी डिनोमिनेशन की मेंबरशिप हासिल की है, आपको मुबारक हो। लेकिन अगर आपने अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिया, नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, नाम किताबे हयात में नहीं, आप अंधेरे में हैं। अभी मौका है अपनी जिंदगी का रिमोट खुदावंद के सुपुर्द करने का। अगर आप में से कोई है जो इस वक्त समझता है या समझती है कि ये आवाज, ये सदा आज मेरे लिए है कि मसरफ लौट आ क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, तो फिर आप जहां कहीं हैं अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए मसीह खुदावंद पर शख्सी तौर पर ईमान ला सकते हैं कि वो मेरे निजात दहंदा और मेरे खुदावंद है। और ये काल सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, आप तमाम खा किसी ही मजहब और दीन से ताल्लुक रखते हैं, आप सब के लिए है। और वो ये कि खुदा के पास जाने के लिए रास्ता एक ही है और वो है खुदाबंद यीशु मसीह। यूहन्ना 14:6, जिसने फरमाया राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। इसलिए अभी अगर आप अपना दिल खुदावंद के सुपुर्द करते हैं तो अभी मौका है। मैं आपके लिए कलील सी मुख्तसर सी दुआ करना चाहता हूं। रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा, आप कहर में धीमे और शफकत में गनी है। आपके प्यार को मैं लफ्जों की माला में परोने से आजिज हूं। आज फिर आपके हुजूर अपनी कमजोरियों का इकरार करते हुए दरखास्त करता हूं कि मुझे और तमाम मेरे हम ईमान भाइयों और बहनों को ईमान की मजबूती अनायत फरमाइए और जिंदगी में जहां कहीं हम बाबल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, रोकने का फजल अनायत फरमाए, ताकि खुदावन आप में हम बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं। हमें हलीम और फुरोतन बनाइए और वो तमाम लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर इस कलाम को सुन रहे हैं,
ऐ खुदावन मिन्नत करता हूं, पाक रूह की कुदरत और इस कलाम के हथौड़े से सख्त दिलों को तोड़ दीजिए, और जो आज अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अपने आप को आपके स्पुर्द करते और सलीब के पैगाम को कबूल करते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी का यकीन और गुनाहों की मुआफी का यकीन दिलाइए, और साथ ही साथ रूह में आगे बढ़ने का फजल अनायत फरमाए। बाइबल बिलीविंग चर्च के साथ रफाकत रखने का फजल अनायत फरमाए। और इसी तरह हमारी इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में जितने भी इस वक्त बीमार, दुखी और लाचार हैं, अपनी आराइज और मनाजात वो फेसबुक के पेजेस पर लिख चुके हैं और लिख रहे हैं। खुदावंद मिन्नत करता हूं, उन पर निगाहे करम कीजिए। ऐ यहोवा राफे, आप जो शाफिए आजम हैं, अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर बीमारों को शफा बख्श दीजिए, कमजोरों को जोर अनायत फरमाए, बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम करें, बे औलाद लोगों के लिए 2021 को द ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी के तौर पर क्लेम करता हूं, उनको बरकत अनायत फरमाइए। और खुदावन मुमकिन कीजिए कि आज के कलाम के वसीला से हम और ज्यादा आपकी कुर्बत और आपकी नजदीकी में आ जाएं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर जब खुदावंद की मर्जी होगी हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।